اس دوسرے دور کا آغاز کرتے ہیں. تمام شعراء کرام کا جنہوں نے پہلے دور میں یہ پیش کیا، ان سب کا میں بہت مشکور ہوں. انہوں نے عزت رکھی، بڑی نوازش، بہت شکریہ. تو جناب دوسرے دور میں کلام شاعر بے زبان شاعر میں سب سے پہلے جناب غزالی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ شاعری فرمائیں. جناب غزالی صاحب. بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے یہ اوپننگ بیٹسمین بنا دیا ہے. جی، ٹوپی کی وجہ سے. اچھا جناب، میں سب سے پہلے تو ارشد راشد صاحب کا یا ارشد رشید صاحب کا بےحد ممنون اور مشکور اور آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ جو ہے یہ کلام پڑھنے کے لیے کہا. یہ اپنے انور مقصود صاحب ہیں ہمارے. مسعود صاحب، انور مسعود. انور مسعود ہے، میں نے مقصود کیوں لکھ لیا بھائی، یہ آگے بھی غلط جائے گا ورنہ تو میری رپورٹ ہے نہیں. بہرحال تو بہت بہت شکریہ ارشد رشید صاحب کہ آپ نے یہ ان کی ایک مزاحیہ بڑی اچھی نظم مجھے عنایت کی. تو انور مسعود صاحب فرماتے ہیں اس نظم کا نام ہے سائیڈ ایفیکٹس. اور سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے وہ خود ہی اس کی ایکسپلینیشن فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی دوائی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی آتا ہے جس میں اس دوائی کے فائدے ہوتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جناب علی فائدے تو اس کے 2 انچ کے برابر ہوتے ہیں، تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ 2 فٹ ہوتے ہیں. بہرحال تو بڑی اچھی ان کی یہ نظم ہے. جناب وہ فرماتے ہیں کہ سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے. سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے، پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے. پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے. ہو سکتی ہے پیدا بھی تبخیر کی صورت. دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے. دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے. ہو سکتی ہے کچھ شکل سماعت کی شکایت. ہو سکتی ہے کچھ شکل سماعت کی شکایت. بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے اس سے. بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر. ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں. ہاں آپ کو یرقان بھی ہو سکتا ہے اس سے. ہاں آپ کو یرقان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور پڑ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت. پڑ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت. خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے اس سے. خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر. ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر. معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے. معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی. دیدہ کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے اس سے. دیدہ کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیچیدہ مرض بھی. ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیچیدہ مرض بھی. گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے. گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور ممکن ہے ہو جائے نشہ اس سے زیادہ، اس سے ذرا سا. ممکن ہے کہ ہو جائے نشہ اس سے ذرا سا. پھر آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے، پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے. بہت بہت شکریہ جناب. غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں. بڑی کیا کرے بہت عمدہ. یہ گولی کہاں ملے گی؟ مجھے چاہیے ہے. سر آپ کو اور حکم نہیں ہے زمانے میں گولی کے سوا. بہت اچھے غزالی صاحب، بہت اچھے. تھینک یو یار، تھینک یو. بہت بہت میں نے شکریہ. آپ کے مزاج کے مطابق ہی نظم چنی تھی.
उम्मीद है आपको नहीं पसंद बिल्कुल बिल्कुल, और आई एम फॉर्चुनेट कि मैं उसको तैयार कर सका। समझा? बड़ी बात, बड़ी नवाज़िश, बहुत शुक्रिया गजाली साहब। थैंक यू। तो हमारी अगली पढ़ने वाली हमें फैज साहब का कलाम सुनाएंगी। मैं दावत दूंगा मोहतरमा अंजुम ज़ीशान को तशरीफ लाएं और फैज का कलाम पेश करें। अंजुम ज़ीशान। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, और महफिल में सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसा कि अरशद भाई ने मेंशन किया, ये फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है, वो बुतों ने डाले हैं वसवसे। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफे खुदा गया। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफे खुदा गया। वो पड़ी हैं रोज क़यामतें कि ख़याले रोज़े जज़ा गया। वो पड़ी हैं रोज क़यामतें कि ख़याले रोज़े जज़ा गया। जो नफस था खारे गलू बना, जो उठे थे हाथ लहू हुए। जो नफस था खारे गलू बना, जो उठे थे हाथ लहू हुए। वो निशाते आहे सहर गई, वो वक़ारे दस्ते दुआ गया। वो निशाते आहे सहर गई, वो वक़ारे दस्ते दुआ गया। न वो रंग फसले बहार का, न रविश वो अब्रे बहार की। न वो रंग फसले बहार का, न रविश वो अब्रे बहार की। जिस अदा से यार थे आशना, वो मिजाजे बादे सबा गया। जिस अदा से यार थे आशना, वो मिजाजे बादे सबा गया। जो तलब पे अहदे वफा किया, तो आबरूए वफा गई। जो तलब पे अहदे वफा किया, तो आबरूए वफा गई। सरे आम जब हुए मुद्दई, तो सवाबे सिद्को सिफा गया। सरे आम जब हुए मुद्दई, तो सवाबे सिद्को सफा गया। और ये आखिरी बंद, अभी बादबां को तह रखो, अभी मुस्तरब है रुखे हवा। हातिम साहब, आपकी आवाज आ रही है बीच में, म्यूट कर लीजिए जी। अंजुम। अभी बादबां को तह रखो, अभी मुस्तरब है रुखे हवा। किसी रास्ते में है मुंतजिर, वो सुकून जो आके चला गया। अभी बादबां को तह रखो, अभी मुस्तरब है रुखे हवा। किसी रास्ते में है मुंतजिर, वो सुकून जो आके चला गया। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफे खुदा गया। वो पड़ी हैं रोज क़यामतें कि ख़याले रोज़े जज़ा गया। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब हम आगे चलते हैं, और आगे इत्तेफाक से जो साहब हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर जो है जलवा फरमा है, वही नजर आ रहे हैं मुझे, हजरत मोइस खान साहब। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अब वो अपना पसंदीदा कलाम पेश करें। किसी नियाज ख्यालवी साहब का कलाम है जिसके नाम से मैं भी वाकिफ। इरशाद। मैं भी वाकिफ नहीं था, मुझे कहीं से इनकी गजल मिली, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं यही पढ़ देता हूँ। और लग तो ये रहा था कि मैं नहीं आ सकूंगा, लेकिन खैर आ गया हूँ। तो मुलाहिजा कीजिए साहब की समातों की नजर है इस गजल के चंद अशार कि नए नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। अच्छा शेर। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। बहुत अच्छे। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। बहुत अच्छे। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बन के तजल्ली से जला देते हो।
नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। वाह क्या वाह। उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छी। बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शाह मिस्र बना देते हो, आखिरकार आखिरकार शाह मिस्र बना देते हो। जज्ब मस्ती को जो मंजिल पे पहुंचा है कोई, जज्ब मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचा है कोई, बैठकर दिल में अनाउल हक की सदा देते हो, अनल हक, अनल हक की सदा देते किस हो। सजा देते हो? खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो, चढ़ा देते हो। वाह। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गंवा बैठता है, अपनी हस्ती भी वो एक रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी कूच खोज में निकले तेरी, कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम इसे झंग के बेले में उड़ा देते हो। जुस्तजू लेके तेरी जो चले कैस कोई, जुस्तजू लेके जो चले तेरी कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। सोहनी गर तुमको महिवाल तसव्वुर कर ले, सोहनी गर तुमको महिवाल तसव्वुर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। और आखिरी शेर है इसका कि खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो। नवाज़ें। बहुत शुक्रिया बहुत फैज खान साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये नज़्म, ये गजल किसी, क्या नाम बताया आपने, न्याज ख्यालवी साहब की, नाज ख्यालवी साहब। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी जी में आता है तुम उसको सुना देते हो। मतलब कुछ इसी किस्म की थी। तो खातिन हज़रात, मोइस खान साहब आपका शुक्रिया के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब हातिम रानी साहब हमारे अगले मेहमान हैं, जो कि हमें जफर इकबाल का कलाम सुनाएंगे। जनाब हातिम रानी। शुक्रिया। जफर इकबाल का कलाम हाजिर खिदमत है। इरशाद। पाए हुए इस वक्त को खोना ही बहुत है, पाए हुए इस वक्त को खोना ही बहुत है, नींद आए तो इस हाल में सोना ही बहुत है, नींद आए तो इस हाल में सोना ही बहुत है, पाए हुए इस वक्त को खोना ही बहुत है। इतनी भी फरागत है यहाँ किसको मयस्सर, इतनी भी फरागत है यहाँ किसको मयस्सर, इतनी भी फरागत है यहाँ किसको मयस्सर, ये एक तरफ बैठ के रोना ही बहुत है, ये एक तरफ बैठ के रोना ही बहुत है। तुझसे कोई फिलहाल, तुझसे कोई फिलहाल तलब है न तमन्ना, तुझसे कोई फिलहाल तलब है न तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है, वाह। इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। ये ओढ़ भी लेते हैं इसे वक्त जरूरत, ये ओढ़ हम ओढ़ भी लेते हैं इसे वक्त जरूरत, हमको ये मोहब्बत का बिछोना ही बहुत है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमको ये मोहब्बत का बिछोना ही बहुत है। उगता है कि मिट्टी ही में हो जाता है मिट्टी, उगता है कि मिट्टी ही में हो जाता है मिट्टी, इस बीज का इस खाक में होना ही बहुत है, इस बीज का इस खाक में होना ही बहुत है।
खुशहाल भी हो सकता हूँ मैं चश्म ज़दन में, खुशहाल भी हो सकता हूँ मैं खुशहाल भी हो सकता हूँ मैं चश्म ज़दन में, मेरे लिए इस जिस्म का सोना ही बहुत है, मेरे लिए इस जिस्म का सोना ही बहुत है। अपने लिए इन चांद सितारों को सरे शाम, अपने लिए इन चांद सितारों को सरे शाम, इस शाख में इस शाख तमाशा में पिरोना ही बहुत है, इस शाख तमाशा में पिरोना ही बहुत है। पहले ही बहुत खाक उड़ाई है यहाँ पर, पहले ही बहुत खाक उड़ाई है यहाँ पर, पहले ही बहुत खाक उड़ाई है यहाँ पर, मेरे लिए इस दश्त का कोना ही बहुत है, वाह, मेरे लिए इस दश्त का कोना ही बहुत है। दरिया की रवानी को ज़फर छोड़िए फिलहाल, दरिया की रवानी को ज़फर छोड़िए फिलहाल, थोड़ा सा ये होंठों को भिगोना ही बहुत है, वाह, थोड़ा सा ये होंठों को भिगोना ही बहुत है, पाए हुए इस वक्त को खोना ही बहुत है, नींद आए तो इस हाल में सोना ही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, अच्छी गजल का इंतखाब किया आपने, बहुत शुक्रिया। खतीब हज़रात आगे बढ़ते हैं। मोहतरमा बानू विजयपुरा अगर मौजूद हैं तो मैं उन्हें जहमत दूंगा कि अब वो अपनी पसंद की एक गजल जिसके शायर का नाम मुझे नहीं पता पेश करें। बानू आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बानू। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। थैंक यू अरशद साहब। ये दीप्ति मिश्रा की गजल है। कुछ इस तरह है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, वाह, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में हिमाकत है तो है, अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा कि वो मिल जाए मुझे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए बस इतनी हसरत है तो है, गैर ना हो जाए तो बस इतनी हसरत है तो है, जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्मा की, जल गया परवाना घर क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है, फिर उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है, दूर थे और है हरदम ज़मीन और आसमान, दूर थे और दूर है हरदम ज़मीन और आसमान, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं रहा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया बानू, बड़ी मेहरबानी।
अच्छी गजल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मोहतरमा ज़ेबा रिजवी साहिबा, आप मौजूद हैं? जी अरशद साहब, मैं मौजूद हूँ। जी, तो इरशाद आप हमें फैज की एक नज्म सुनाएंगी मोहतरमा ज़ेबा रिजवी। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, खासतौर से अरशद भाई आपका। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमने हमारे मोहतरम भाई मौजूद हैं यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम और आप आदाब और नमस्ते। जो आप सबको बहुत बहुत ईद की पेशगी मुबारकबाद भी देना चाहूंगी, हज की और ईद की पेशगी मुबारकबाद। और ये गजल, ये नज्म जो मैं सुना रही हूँ, इसका नाम है इंतिसाब। फैज अहमद फैज साहब की लिखी हुई है और मेरी चंद पसंदीदा अशार में इनके अशार भी आते हैं। कुछ अशार तो मेरे लिए बेहद पसंदीदा है। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम जो है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा, आज का गम जो है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, क्लर्कों के अफसरदा जानों के नाम, करम खोरदा दिलों और नालों जुबानों के नाम, क्लर्कों के अफसरदा जानों के नाम, करम खोरदा दिलों और जुबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, कोच वालों के नाम, तांगे वालों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, कोच वालों के नाम, तांगे वालों के नाम, कारखाने के भूले भूले जियालों के नाम, बादशाहे जहां वालिये मासफा, नाइबुल्लाह फिल अर्ज़ दहका के नाम। क्या या अल्फाज जरा देखिए, क्या एक किसान को किस ऊंचाई पे बिठा दिया है। बादशाहे जहां वालिये मासफा, नाइबुल्लाह फिल अर्ज़ दहका का नाम, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए। एक एक लफ्ज की गहराई में आप जाइए। ये जो चंद लाइनें हैं, ये मेरे लिए बेहद पसंदीदा लाइनें हैं। जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, हाथ भर खेत से एक उंगली पटवारी ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने सरकार ने काट ली। यानी बेबसी तो देखो इस किसान की, जिसके लिए वो कह रहे हैं कौन है ये, बादशाह जहां वालिये मासवा, नाइबुल्लाह फिल अर्ज़ दहका के नाम। और उसकी क्या दुख भरी दास्तान क्या है, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, हाथ भर खेत से एक उंगली पटवारी ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने सरकार ने काट ली, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गईं, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गईं। उसके बाद उन दुखी माओं के नाम, जिनके बच्चे बिलखते हैं भूख की मार खाए हुए बाजुओं से संभलते नहीं, उन दुखी माओं के नाम, जिनके बच्चे बिलखते हैं और भूख की मार खाए हुए बाजुओं से संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं, उन हसीनाओं के नाम, जिनकी आंखों के गुल चिलमनों और दरीचों की बेलों पर बेकार खिल खिल के मुरझा गए, चिलमनों और दरीचों की बेलों पर बेकार खिल खिल के मुरझा गए। इन ब्याहताओं के नाम, जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पर सच सच के उकता गए, उन ब्याहताओं के नाम, जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पर सच सच के उकता गए। बेवाओं के नाम, कटरियों और गलियों मोहल्लों के नाम, जिनकी नापाक खाशाक से चांद रातों को आके करता है अक्सर वुजू। यानी नापाकी और वुजू को कैसे मिलाया है जरा देखिए। जिनके नापाक खाशाक से चांद रातों को आके करता है अक्सर वुजू, जिसके सायों से होती है आहो बका, आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, काकिलों की महक, आरज़ूमंद सीनों को अपने पसीने में जलने की बू, आरज़ूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की बू। तालिब इल्मों के नाम, पढ़ने वालों के नाम, वो जो असाब तबलो इल्म के
दरों पर किताबों कलम का तकाजा लिए, हाथ फैलाए हुए पहुंचे पर लौट के घर न आए। पहुंचे तो पर लौट के घर न आए। वो मासूम, वो फूल बन में अपने नन्हे चिरागों में लौकी लगन लेके पहुंचे जहां बट रही थी जहां घटाटोप अंधेरा, जहां बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए, जहां बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। उन असीरों के नाम जिनके सीनों से शबे ताप गौहर, जेल खानों के शोरीदा रातों के नाम, जेल खानों की शोरीदा रातों के नाम कि सरसर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए। आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, आने वाले दिनों के सफीरों के नाम। वो जो खुशबू लिए गुल की तरह, जो खुशबू लिए गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद ही फिदा हो गए। उन हसीनाओं के नाम जिनकी आंखों के गुल बुझ गए। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम जो है जिंदगी के भरे गुलिस्तां से खफा, आज के नाम और आज के गम के नाम। शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया मोहतरमा ज़ेबा रिजवी साहिबा, आपने अच्छा हमें कलाम इनायत किया, नवाजिश। मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर गजाला अंसारी से, मैं ये तो देख रहा हूँ आप मौजूद हैं, आप कुछ सुनाना चाहेंगी डॉक्टर गजाला अंसारी? मैंने आपसे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी तो मैंने इसलिए किया नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप मौजूद थे तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा उसमें जी इंशाल्लाह यार, जिंदा सोहबत बाकी, बेशक बेशक।